Good afternoon, everyone. I, Radhika, welcome you all to the 20th technical session. The speaker for this session is Mr. Sahil Agrawal and Mr. Manoj Tripathi. Mr. Sahil Agrawal is an Indian educationist and social entrepreneur. He has founded Rishod University and Rashram School of Public Leadership. He studied technology at IIT Delhi and diplomacy at Jindal Global University. Sahil has co-authored a book on public policy, co-designed a card game on politics, and keeps writing for newspapers and magazines. He hails from Sonipat, Haryana. Now, मनोज कुमार त्रिपाठी सीनियर चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक जागरण के, आपके साथ पिछले 12 साल से 25 से 30 रिपोर्ट्स की टीम को लीड कर रहे हैं. अभी कोरोना महामारी में भी खुद काम कर रहे हैं और पूरी टीम को लीड करते हुए उनसे काम ले रहे हैं. Now we have Dr. Shilpi Rajpal as the chair for the session. Dr. Shilpi Rajpal is the Assistant Professor of History in the School of Liberal Arts and Human Sciences at Aarey University. The chair will call up the next speaker and at the end, chair will take up the questions. Now, thank you. Over to you, Mr. Sahil Agrawal. I am sharing some thoughts here, and I hope that you all will also echo these thoughts. Particularly this topic of diplomacy in the post-COVID world, when Omji approached me and told about this conference, I was very excited because this is a topic that has been going on all of our minds. Since this is an international conference, there's so many people from all across the world here. It will be great to discuss this multilateral topic of diplomacy. So just like everything else, I think diplomacy is also being influenced by the way COVID has been happening, and it will alter, or rather I would say exaggerate, some of the things that had been happening in the diplomatic ecosystem. So we'll begin with this tweet, this set of tweets by the American president when after a long set of harsh tweets against China, on March 27th, he said that he just had a very good conversation with the Chinese president, and they discussed a lot of things that have been going on in China to develop a strong anti-corona system in the US, and they are working together, and there's so much respect that he has for the Chinese president. And then, of course, after some time, 11 days, April 7th, he says that the WHO really blew it, and he put all the blame to WHO. He rejected the committed funds towards the World Health Organization, and he says that the WHO has become very China-centric. So this is showing us the way Corona has played on the minds of leaders. It's not just common people, but the president of the most powerful country in the world is also having to grapple with this issue, and they are in fact the worst affected due to the virus. So what is this leading to? We see that there is a rise of emotions, different kinds of emotions that have come out in diplomacy, and this has not been so common earlier. There is a very direct display of solidarity. We see that the Matterhorn mountain in Switzerland, and Switzerland projected different flags. We see India here, but US, UK, so they're choosing a flag and projecting it at the night on this huge mountain for rest of their city to see. It's a public display of solidarity, and that we are in this challenge together. And I don't know, when was the last time when such a solidarity on a global scale visible. And this is not just at a global level. We see at the local level, Indian Prime Minister encouraging all of us, and so many Indians went out and banged our plates in praise of the COVID warriors, as we say. We see this happening in London. People are singing songs. We see this happening in Singapore, probably some other cities. So there is a public display of solidarity. We see so many tweets by global leaders that we're talking to the Prime Minister of Thailand, talking to the King of Bhutan, and we are discussing issues, and we are in this together. So much of solidarity. And there's a global outpour of digital and diplomatic solidarity. As is, there's a rise of this emotion, but this is not the only emotion that COVID has generated, and let's see how.
we see that there is a lack of trust now in multilateral institutions. This famous photo of the head of World Health Organization after President Trump said that he's got a Chinese lens to look at this situation. So what has happened? If we look at it, we see that there is a self-interest with which we participate in multilateral organizations, be it WHO, be it UN, be it WTO, any of these. And when that self-interest is hurt, we see that there is more of hegemony at play. So they're not going together. So even if it's in the interest of US to remain an important part of WHO, they want to maintain their hegemony. They don't want to get into a situation when an organization which is to participate in which is in their own self-interest is influenced or controlled by some other country. And this is especially true for nations which have a greater power. And we see that when there is hegemony, there is a lack of trust happening. So all the countries, especially those who have been in power, are trying to gain their share of the pie in this global power system. But they're also trying to make a fine balance with trust. So we saw that how China has kind of lost significant trust that it was trying to build over so many decades just by this one single incident, when we are seeing so many global leaders asking tough questions to China. And most interestingly is this dilemma between trust and solidarity. As a common observation, we would assume that when there is solidarity among people, there should also be trust. But here is a situation when we have solidarity at its peak, but probably the trust is lowest ever in someone else, in another country or in another organization. So this is one way in which COVID has brought out emotions, different kinds of emotions, not just in people, but in entire countries and regimes. Now, what does India have to do? Of course, India has been on the rise when it comes to its global stature. For the last 7-8 years, we have been a very aggressive country in terms of international relations, and of course a very trustful country also. But COVID has brought that side up. We have been very proactively helping so many different countries. We've been supplying medical aid from Kazakhstan to Uruguay to smaller countries like Djibouti and St. Lucia. And we see that there is a kind of a Twitter friendship which has been growing since the last 7-8 years because of the rise of social media, as well as because of our proactive stand in the international arena. And we're seeing global leaders thanking India. So India is emerging actually as a very trustful partner. And what had been happening before COVID is now sort of in the forefront in terms of India's global aspirations to become a friendly and powerful yet a very friendly country. So it's not just about supplying medical aid, but there are also a lot of countries, including Japan, Australia, Korea, US are trying to relocate and divest their reliance on China to India now. So global companies are thinking to shift their base from China to India. And there was a very famous article recently that we cannot de-link Chinese politics from business with China now. So they go hand in hand. On the other side, India's soft power is also rising. We saw Trump's discussion with the Irish Prime Minister, where he's telling his story of just before Corona outbreak, Trump was in India for the Namaste Trump event. And he says this to the Irish Prime Minister during a press conference that this is a time when we can't shake hands, we just can do Namaste. And this is something that India can show to the world. So of course, there is within India and outside now, there is a global recognition that we have to practice some hygiene-based greetings.
Our human touch has to reduce. Then we see on the right how breathing techniques have taken a global appreciation. That people are now recognizing the need for immunity, which is a very natural immunity built by yogic techniques such as pranayama and breathing. We see the rise of turmeric as a concept. A few years ago, when US, some coffee shops in the US were serving turmeric latte, it appeared a little fancy to us. But now we see how a simple, not just turmeric, but a lot of other ingredients which go into Ayurveda and food-based immunity and wellness are getting recognition globally. And of course, we see the role that a diaspora community can play in battling such pandemics or any kind of challenges abroad. So these are some things which were already happening, and now it's sort of getting a more direct visibility. This is something very challenging that is in front of us. So till now, we do not know the origins of the virus. There have been all kinds of stories that whether it emerged from the wet food market, wet animal market, or whether it was created in the lab, or whether it was not originated in China itself. It came from Europe or probably Canada. So we're seeing these different kinds of theories, but the fact is that the origins are still unknown, and there is no one to claim responsibility. Now, just imagine a situation when this is a planned thing. There's no, it's just an assumption at the moment. But if we assume that is true, then we see that we have a potentially disruptive bioweapon for which no one is ready to take the responsibility and no one can be pinpointed to. And that's a very dangerous situation. So before this, one of the significant events that happened in the world was the 9/11 attack on the World Trade Center. But that there were people who claimed responsibility, and there were people, the American forces and the NATO forces who were willing to destroy and damage those terror activities. But in this case, what can we do? And this has given us a very dangerous template for the future. So even if coronavirus was just a innocent mistake, no one was intentionally behind it, we have a template which is very dangerous for the world, and we are not prepared for it at all. Is there an alteration in the global order itself? So we see that the pandemic has captured our imagination. We're not able to think something else other than this at the moment. And we're thinking that everything should be designed to manage such pandemics. But the issue is that we cannot design for exception. All said and done, such incidents remain an exception. They are once in a century kind of events. So it's too difficult and complex and inefficient to design our systems based on such an incident. But what it has done is that there were things happening already in the global order. There were fault lines, there were directions, there were momentums, and the pandemic has put them in the forefront. We see that what is happening in the European Union, the entire European region as an economy was sort of the importance of European Union as an economic powerhouse was diminishing. There was Brexit. There were fault lines. The demographics have been very openly, as a fault line displayed because of an old population. The impact that COVID has had on that kind of an old population is not just a health impact, but now it's quite visible that European Union will have to plan something about the demographics, because as an economy they cannot sustain themselves if the sort of age demographics do not change. And there has been economic stagnation, and just like other countries in the world, the region's economic forecast is not so good post-corona. Another global order issue is this divide between developing and developed world. And we see that some of the most developed countries
Western Europe and US are actually the worst affected because of coronavirus. So this tells that although we can have our military and economic might, that does not prepare us to deal with such situations. And that's the kind of play that fault line that has come out because of COVID. Global supply chains, Australia has said that they are ready to investigate China's role, while they know that their economy is heavily dependent on China. So what will happen to global supply chains? Countries were thinking to diversify so that they can mitigate their risks, and now it's out in the open. And we see that as all countries in realpolitik, they try to prioritize their self-reliance, their self-interest. It will happen even more so after the coronavirus. Summarizing, I would say that there is diplomatic solidarity, but there is a lack of trust, which is a very interesting, very fascinating situation. And it's not so easy to put that two ideas in our mind together, that there is a growing solidarity and a growing lack of trust. And the existing fault lines has been exposed. It's not that COVID has created only new fault lines. So many existing fault lines which existed have been exposed, and states are going to move towards self-reliance. The world is not at all prepared for biowarfare. In the event, in the unfortunate event that we have to face another bioweapon or a bio danger in the future, we now know that there is no preparedness at all in the world, and we cannot control these non-state actors. So, for example, till now we've seen that organizations like ISIS have been non-state actors, but what about academic institutions, research labs, which can be the source of such weapons? And the final thing, India will continue its plan to step up in the global order. What we have to take care is that we remain trustful and friendly and mutually beneficial in our relations. So I'll stop at that. If we'll have time for questions later, I'll be very happy to take them. सभी को मेरा नमस्कार है, और हम लोग यहाँ पर कोरोना कोविड-19 के बाद के अभी के इम्पैक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और ये एक यूनिवर्सिटी और डॉक्टर द्विवेदी का बहुत अच्छा प्रयास है। एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी हैं, डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, वो इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और इस मंथन से जरूर कुछ ना कुछ बेहतर ही निकल के आएगा। और इन तमाम चीज माहौल के बीच में जो एक सबसे बड़ी चीज है अभी निकल के आ रही कि इसके बाद क्या होगा। हर बंदा इसी पे डिस्कशन कर रहा है कि कोविड-19 के बाद फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारा कुछ चेंज हो जाएगा, मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। इवन बीइंग ए मीडिया पर्सन मैं खुद इस चीज को फील कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जाके कवरेज करके और अपनी टीम से काम लेते हुए, कि प्रिंट मीडिया का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर ऑफ प्रिंट मीडिया जो है आफ्टर कोविड-19 या बिटवीन कोविड-19 क्या है, हम किस साइड पर जा रहे हैं। तो इस पर मैंने जो मेरा अपना व्यूज है, जो मेरे तर्क हैं, कि कुछ समय के लिए ये एक है गैप आया हुआ है, और बाद में धीरे धीरे सब कुछ, जैसे लॉकडाउन में कुछ दिन का लॉकडाउन हुआ और धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होके रिलैक्सेशन दी जा रही है, ऐसे ही धीरे धीरे आने वाले टाइम में सारी चीजें नॉर्मल होंगी। हाँ, हमारी आदतें जरूर चेंज होंगी। बीइंग ए मीडिया पर्सन, मैं चूंकि काम भी कर रहा हूँ पूरे पंजाब में घूम के, और पंजाब में जब पहला केस आया दैट वाज 15 मार्च, तो आफ्टर दैट हमने जब देखा तो वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट कि हाँ इसकी कवरेज हमें किस तरह से करनी है। वो करने के लिए हमने मैं खुद गया, अपनी टीम हमने वहां पर भेजी जाके, और वेरी नेक्स्ट डे जो है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर हमें बताया कि नहीं आप लोग वहां पर इस तरह से नहीं जा सकते थे, आप ऐसे कैसे चले गए वहां पर। ही एनआरआई फ्रॉम रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, फर्स्ट टाइम वो हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में स्टाफ प्रिपेयर नहीं था, तो उनको सिर्फ
सिंपल टेस्ट किया और वापस जाने दिया कि ठीक है आप अपने घर पर जाइए और घर पर रहिए। आफ्टर दैट वो एक सिख उसमें होता है, मेला होता है यहाँ पर, तो उस मेले में चले गए और वहां पर उन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया प्रसाद, लंगर, सम काइंड ऑफ प्रसाद वो डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद वो घर आए। तो हम सारी टीम हमारी जितनी भी थी वो उसकी कवरेज के लिए, बाद में हमें 14 दिन के लिए कहा गया कि नहीं जी आप सारे लोग क्वारंटाइन रहें। ठीक है, इन बिटवीन हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी को कैसे इस पीरियड में बना के रखें। जो इंफॉर्मेशन है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो बहुत सारे थे, सोशल मीडिया भी था, प्रिंट मीडिया भी था, हर रिपोर्टर का अपना एक चैनल होता है सोर्स का, वहां से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो वो सारे सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उन इंफॉर्मेशन को करेक्ट करके हमें लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी। इस पर हम लोगों ने मंथन किया, फिर हम लोगों ने बैठ के प्लान किया कि नहीं यार, हमें सारी इंफॉर्मेशन को तुरंत ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि इस समय दौड़ है ऑल मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कि ब्रेकिंग न्यूज, कुछ भी इंफॉर्मेशन आई तुरंत उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के डाल दो जी, ओपन फॉर ऑल कर दो जी कि हाँ जी ये हो गया है। और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया है वो कि नहीं जी आपने सनसनी नहीं फैलानी है। तो मैक्सिमम जो रोल रहा शुरुआती पीरियड में, जब चाइना में से वीडियोस निकल के आ रहे थे तो हम सारे लोग यहाँ पर देख के बहुत ज्यादा उसको कुछ लोग इंजॉय भी कर रहे थे, उनमें हम भी एक थे कि अच्छा इस तरह से उन्होंने लॉक कर दिया है, बाहर से दरवाजे लॉक कर दिए, लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर वो आया तो सारा चीज इतनी तेजी के साथ में चलता रहा कि हम उसके लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए। और साहिल, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जो लैक ऑफ ट्रस्ट आया, उसके बाद में ये मीडिया इंडस्ट्री में भी लैक ऑफ ट्रस्ट आया कि हम एक ऑफिस में काम करते हुए एक दूसरे से दूर रहना है, खुद को सेफ करना है और बचा के जो है एक दूसरे से बचते और बचाते हुए करेक्ट इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। तो उस पर जो है करते हुए, प्लस अपनी जो हमारी चलो टचवुड मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी थी कि हम कहते गए कि जी आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उन्होंने कहा ठीक है आप लोगों ने परफॉर्म करना है, आप लोगों ने करना है, तो आप जैसा सही समझो उस तरह से आप अपना ओन सिस्टम बना के काम करो। तो हमें उसका फायदा मिला और मुझे लगता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इस चीज को लागू करना चाहिए कि जो जहां पर फील्ड पे जो ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोग हैं, उनकी कवरेज कर रहे हैं। लाइक दैट अब इंफॉर्मेशन एक आती है कि जी आइसोलेशन वार्ड में लोग जो पेशेंट हैं वो भंगड़ा डाल रहे हैं। अब आइसोलेशन वार्ड में मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हमारी जो है एक जिम्मेवारी बनती कि नहीं जी उस भंगड़ा डालते हुए की वीडियो जो है और कवरेज हम लोगों तक नेक्स्ट डे पहुंचाएं कि आइसोलेशन वार्ड का हाल क्या है, लोग जानना चाहते हैं। तो उस चीज को लेके फिर हमने अपने सेल तेजी से डेवलप किया आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर कि ठीक है जी हम नहीं आ रहे। एक दो बारी हमने कोशिश की, हम में से कुछ साथी थे जो उन्होंने उसकी वीडियोस भी बनाई। फिर हम हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें एजुकेट किया कि नहीं आप लोगों ने डायरेक्ट इंटर नहीं करना है, आप अपने सेल डेवलप करो, वहां से उनसे जो है वो वीडियो बनाओ, फिर उसको आप क्रॉस चेक करो। तो वो सारा कुछ करने के बाद में फिर हमें उसके रिटर्न मिले। तो ओवरऑल 15 to 20 डेज लगे हमें खुद को स्टेबल करने में, क्योंकि सबसे पहले कि एक शाम को जब हम लौट के घर आते थे तो एक मेंटल प्रेशर होता था, यार आज मैं उससे मिला था, आज मैं उससे मिला था, आज मैं उस पेशेंट से मिला था, आज मैंने उस पेशेंट का इंटरव्यू किया था, तो कहीं मुझे तो नहीं हो गया है। अगर हल्की सी खांसी या सर भारी भी होता था तो ये लगता था यार लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है। तो हम डर जाते थे, रात में नींद नहीं आती थी। और ये मैक्सिमम जितने भी फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम आई कि रात रात भर कई रिपोर्टर्स ऐसे थे जो नेक्स्ट डे बताते थे कि सर हमें नींद नहीं आई, हम सो नहीं पाए। इवन उससे मैं खुद भी शामिल हूँ। फिर हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया कि जी हम लोग इस तरीके से, मेरी पूरी टीम जो है वो ये चीज फेस कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग चूंकि आदत है आपकी 12-14 घंटे काम करने की, तो आप इसमें डरो नहीं, आपका ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ एक दवाइयां दी और साथ में कि आप लोग योगा करो। तो फिर मैंने खुद शुरू किया और अपनी सारी टीम को मैंने एक सेशन करवाया कि सुबह सुबह फिर हमने 7 बजे से 8 बजे का एक सेशन रख लिया योगा का, जैसे अभी हम लोग जूम पे कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कि वो योगा करे सारी टीम। तो 5-6 दिन लगे तो फिर टीम जो है वो स्टेबल होने लगी धीरे धीरे।
अब कोरोना की कवरेज में किसी को प्रॉब्लम नहीं, अब हर रिपोर्टर एजुकेट हो गया है कि उसको किस तरह से कवरेज करनी है, कितनी डिस्टेंस बना के कवरेज करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे किस तरह से प्ले करना है, पहले क्रॉस चेक करके ही प्ले करना है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए यहाँ पर खड़ा हुआ प्रिंट मीडिया के लिए, वो हुआ सोशल मीडिया। लाइक दैट फेसबुक पे किसी ने डाल दिया कि हमारी कॉलोनी में 2 पेशेंट आ गए, तो अब हमारी जिम्मेवारी है जो भी फील्ड के रिपोर्टर्स हैं कि वो सबसे पहले जाके क्रॉस चेक करें कि वहां पर वाकई में ये हुआ या नहीं हुआ। तो आप उसके सोर्सेज, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को फोन करते हो, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप पुलिस को फोन करते हो, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक कॉलोनी के बंदे ने उठा के डाल दिया कि जी हमारी कॉलोनी में 2 पेशेंट हैं और कुछ ऐसे वो उनके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो अब आप फिर सबसे पहले उसको आप हेल्थ डिपार्टमेंट को आप कहो। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हम लोगों ने की, फिर धीरे धीरे हम ट्रैक पर आते गए और एक हम सही ट्रैक पर निकलते गए कि सबसे पहले चैलेंज ये था कि खुद को फिट करें। कोरोना का जो एक माइंडसेट था कि हम पहले खुद को इस माइंडसेट से बाहर निकालें, तो हमने कोरोना को के माइंडसेट से खुद को और अपनी टीम को पहले बाहर निकाला। ये कुछ नहीं करता है, सिंपल एक वायरस है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहो और जो गाइडलाइंस आ रही हैं आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करो। और साहिल जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि अपना इम्यून सिस्टम से लेके सारी चीजें जो है आप उनको जो है वो फिट रखो, फिर आपको कुछ नहीं होगा। सपोज दैट अगर हल्का फुल्का कहीं हुआ भी, चीन में डॉक्टर हैं, डॉक्टर चौबे, तो उनकी वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी हम लोगों ने देखी, सारे लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं 80% या 90% को तो ये कुछ नहीं कहता, उनको होता भी और खत्म भी हो जाता, पता नहीं चलता है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को धीरे से हमने फ्लैश किया सोसाइटी में, अपनी टीम में, तो वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हुआ और उसके बाद धीरे धीरे हम जो है एक ट्रैक पर लेके चलते रहे। हाँ, लेकिन इन बिटवीन सबसे आज भी सबसे बड़ी जो हमारे सामने एक चैलेंज है हमारे लिए, वो है क्रेडिबिलिटी की। जो इंफॉर्मेशन हम फ्लैश कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रही हो या कहीं से भी आ रही हो, तो वो सारा वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके। क्योंकि आपने अगर लिख दिया न्यूज़पेपर में कि इस कॉलोनी के 2 लोग या इस मोहल्ले के 2 लोग या इस इलाके के 2 लोग पॉजिटिव या 4 लोग पॉजिटिव हैं, तो अगले दिन आप उसे मिटा नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे तो कोई चीज चल गई, आपने हटा दिया, वेरी सेकंड के बाद में उसको हटा दिया अगर वो इंफॉर्मेशन गलत होती है। हमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो हम उससे मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी जो चैलेंजेस हैं वो सबसे ज्यादा रहे। और हमने सोशल मीडिया को धीरे से फिर बाइकाट करना शुरू किया। बाइकाट इन द सेंस कि सिर्फ हम उससे इंफॉर्मेशन देख रहे थे, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन को वेरी फर्स्ट उसमें हमने एक आदत डेवलप की कि नहीं, हमें रिजेक्ट करना है। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी, फर्स्ट हैंड। सेकंड हैंड उसको क्रॉस चेक करना है, उसके बाद अगर वो सही निकल रही है देन फिर हमने उसको आगे प्रोसीड करना है कि हाँ ठीक है, इस पे हम आगे वर्क करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों के बीच में भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा मीडिया का। मीडिया इंडस्ट्री इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है। परसों मीडिया इंडस्ट्री ने 2 दिन पहले डिमांड किया कि 15,000 करोड़ का जो है वो हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो हमें जो है मीडिया इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ पैकेज दे। फोर्थ पिलर है, हमें फोर्थ पिलर कहा जाता है। तो हम सारे लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट करना है, न्यूज भी जनरेट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प भी करनी है। क्योंकि ये टाइम जर्नलिस्टिक, प्योर जर्नलिस्टिक टाइम नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि मैं प्योर जर्नलिस्ट बन के इस समय काम करूंगा तो शायद मैं गलत होऊंगा। तो ये एक है कि फोर्थ पिलर जो है कहीं कमजोर ना हो जाए, उस पे हमें थोड़ा सा एक फोकस करना है। गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है, बहुत सारे और अथॉरिटीज हैं वो इस पे वर्क कर रही हैं। हाँ, एक चीज ये है कि इन सारी चीजों के बीच में कि अब मीडिया का, चूंकि ये चीज अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये 2 महीने चले, 3 महीने चले, 4 महीने चले, तो हमें उस तरह से प्लान करना पड़ रहा है कि 2, 3, 4 महीने का हमें प्लान करके, हो सकता है 6 महीने तक ये सीन जो है वो आगे चलता रहे। इन बिटवीन जो है वो मीडिया की क्या पोजीशन होगी। बहुत सारी जगहों पे ये न्यूज आ रही कि हॉकर्स ने जो है वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया, जबकि ये रिसर्च भी आ चुकी कि 2 से ढाई घंटे जो है वो कागज पे वायरस टिकता है।
इससे ज्यादा वायरस नहीं टिकता है। तो उसके बाद भी हॉकर्स जो है वो नहीं वो कर रहे थे, तो फिर एक एक हॉकर्स को पकड़ना, हॉकर्स को मोटिवेट करना कि नहीं, हमारे पास सुबह सो के उठने से पहले मैक्सिमम जो कॉल्स आती हैं अभी भी, वो उन रीडर्स की आती हैं जिनको न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं कि सर आज हमारे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आया, हमें न्यूज़पेपर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ का 35 एज ग्रुप से ऊपर वाला एज ग्रुप है, 35 प्लस वाला, 35 से 70 80 प्लस तक जो भी लोग हैं जिनकी आदत पड़ चुकी है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो उनको सुबह न्यूज़पेपर चाहिए। ठीक है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, सोर्सेस सारे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सुननी चाहिए। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि हम न्यूज़पेपर मार्केट में अगर पूरी तरीके से 100% नहीं पहुंच रहा है तो हम वो कैसे उन तक पहुंचाएं। तो उन्हें एजुकेट किया, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उन तक खबरें पहुंचाई। कई बार ऐसा भी करना पड़ा कि हमें खुद जो है पढ़ के उनको सुनाना पड़ा कि ये अब कई बुजुर्ग हैं जो 60-70 ईयर्स के हैं, उनका सीधा सीधा सा डिमांड होता है कि नहीं जी हमें न्यूज़पेपर चाहिए, हम नहीं जानते, हम घर में लॉक होके बैठे हुए हैं। हमारे बहुत सारे लोग इंटरटेनमेंट के डिफरेंट वो हैं, तो हमारे लिए इंटरटेनमेंट का एक न्यूज़पेपर ही सोर्स था, वो भी अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो हम कैसे सर्वाइव करें। तो ये एक उनकी वो थी, प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने फिर उसको भी फेस किया और फेस करके धीरे धीरे उन चीजों को हमने अब न्यूट्रलाइज कर लिया है, उन्हें भी मेंटली प्रिपेयर कर लिया है, उन तक न्यूज़पेपर पहुंचने लगा बहुत सारे लोगों तक। अब ये एक नई चीज आ रही है कि क्या इसके बाद इंडस्ट्री सरवाइव कर पाएगी, या अगर करेगी तो उसका जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि 35 एज ग्रुप से बाद वाला जिन लोगों की आदत पड़ चुकी है, 5 साल 8 साल, जो लोग सुबह उठ के टॉयलेट्स में जाके न्यूज़पेपर पढ़ने से लेकर के, या सुबह चाय के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने की जिनकी आदत पड़ चुकी है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना उन्होंने कभी छोड़ना नहीं है। हाँ, एक वो जरूर है, एक अभी एक पोएट्री आई थी बहुत अच्छी कि हम मोटे थे, हमें कोरोना ने पतला कर दिया, हम लड़ते थे, कोरोना ने हमारी लड़ाई बंद कर दी, हम रोजाना मुस्कुराते थे, कोरोना ने हंसी गायब कर दी। लेकिन धीरे धीरे हमने कोरोना को हराना है, और मीडिया ने जो एक फोर्स पिलर ने ये गवर्नमेंट के साथ में मिल के, लोगों के साथ में मिल के एक ये स्टेप लिया कि नहीं, कोरोना को हराना है। ये जो चीज है, इससे बहुत ज्यादा जो है बल मिल रहा है, बहुत ज्यादा जो है शक्ति मिल रही है, और आम लोगों में भी जो है अब आम लोग अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं यार, हमें वाकई में कोरोना को हराना है। तो मुझे लगता है कि कोई मीडिया पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत रेवेन्यू वाइज जरूर जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है, और आने वाले समय में भी आएगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ओपन होएंगी तो धीरे धीरे वो चीज भी खत्म होती जाएगी। और बहुत ज्यादा हम इसको कोरोना को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है इन बिटवीन, जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है कि फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन का फील्ड है, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। वजह ये है कि जो डिफरेंट स्टेट्स में लेबर है, अब है क्या कि लाइक दैट पंजाब है, तो पंजाब में जो पंजाब का लोकल लेबर है वो पंजाब की इंडस्ट्रीज में 10% है, 90% अदर स्टेट का लेबर है। ऐसे ही अदर स्टेट्स में भी चीजें हैं कि मैक्सिमम लेबर, जो फैक्ट्रीज का जो लेबर है, वो अदर स्टेट का है। तो ये अब चूंकि लंबा टाइम हो गया है लॉकडाउन का, 1 महीने 1.5 महीने से ऊपर हो रहा है, और अभी भी ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये हम नहीं कह सकते। तो इसलिए वो लेबर जो है वो परेशान है, और वो अपने अपने घरों के लिए निकलना चाहे। बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले जैसे वीडियोज आई थी दिल्ली का, आप सारे लोगों ने देखा होगा किस तरह से लेबर्स की भीड़ जो है वहां पर इकट्ठी हो गई। तो धीरे धीरे अब सारी गवर्नमेंट्स ये प्लान कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, जो लेबर जिस स्टेट का है उसे उस स्टेट में वापस भेज दो। अगर ये चीज 100% हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि 2020 में आप अपनी 60% इंडस्ट्री नहीं चला पाओगे। इंडस्ट्रियलिस्ट एक तरफ जो है, और एक तरफ गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट सैलरी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन अगर वो कर भी लेते हैं तो माल कहाँ बेचेंगे, एक उनका ये चैलेंज है। तो ये एक जरूर जो है आ रहा है, एक फैक्ट है। और जितनी जल्दी हो सकता है कि अगर इसमें गवर्नमेंट भी कुछ इंटरफेयर करे तो और बेहतर है। वैसे गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे बहुत इनिशिएटिव लिया है कि लेबर्स को राशन से लेके
और उनको रहने और उनका प्रॉपर जो है वो करने के लिए कि हाँ उनका मेडिकल चेकअप होता रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो फैक्ट्रीज का लेबर है उस लेबर के अंदर ये विश्वास जगाया जाए कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप कोरोना से लड़ सकते हो। उन्हें हम मोरल सपोर्ट दें, हम उनका पेट भरें, हम उन्हें जाने ना दें जहां पर वो हैं, हम उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में जो है उनको जितनी हेल्प कर सकें हेल्प करके रोकें, क्योंकि वो जिस भी स्टेट से में है उस स्टेट की इकोनॉमी की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा रोल है। ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि कुछ भी हो जाए कोरोना से हम जीत के रहेंगे, कोरोना को हम हरा के रहेंगे। और मीडिया एक बार फिर इन तमाम चीजों से उतार चढ़ाव से होते हुए और आप तक जो है रेगुलर खबरें जैसे पहुंचाता था पहुंचाता रहेगा। हम सारे लोगों की कोशिश है। और फील्ड में लगा हुआ जर्नलिस्ट, आप ये देखो कि अभी तक जितने भी कोरोना के पेशेंट्स आए हैं उसमें जर्नलिस्टों की अगर आप नंबर्स देखो तो वो बहुत कम है। जो फील्ड का जर्नलिस्ट है वो बहुत कम जो है इससे इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट फील्ड में इन्वॉल्व था, तो उसने बहुत तेजी के साथ में खुद को अपडेट किया, मोटिवेट किया और खुद को तैयार कर लिया इससे लड़ने के लिए। तो इसका इम्पैक्ट ये रहा कि वो अभी बहुत ज्यादा इफेक्टेड इससे नहीं हुआ। और वही जर्नलिस्ट जो है, वही फील्ड का जर्नलिस्ट जो है एक बार मीडिया इंडस्ट्री को पुराने दौर में फिर से लेके आएगा। और हम सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को अगर जारी रखेंगे तो हम सारे लोग जीतेंगे। थैंक यू। Hello. Yeah, so there is a question on Indian budget. So I'm not an economist, but so based on the presentation, what I would like to share is that our focus should now go into building infrastructure for manufacturing, and not just like outsource manufacturing serving the needs of the first world countries. But we should be ready to do advanced manufacturing, and that is where we should put focus to building infrastructure, building the factories, opening up the ease of doing business policies, not just for Indian manufacturers, but for international manufacturers too, linking our manufacturing capabilities with R&D so that we can move up in the manufacturing chain. So that would be my short answer. Thank you, Sahil ji. Thank you so much. And thanks, Mr. Manoj, as well, for giving us your time. And we look forward to engage with you in different ways in the future.